Hello everyone. In this video, we will do exercise 11.1, chapter 11, three-dimensional geometry, class 12. So, let's begin with question number 1. That is, if a line makes angles 90 degree, 135 degree and 45 degree with x-axis, y-axis and z-axis respectively, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। सो देखिए हमें एक लाइन गिवन है जो कि 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो हमें उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। सो वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन मेकिंग एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा with x-axis, y-axis and z-axis respectively are cos alpha, cos beta and cos gamma। क्या होते हैं एंगल्स? जो कोसाइंस ऑफ एंगल हमें लेने हैं, जो गिवन एंगल्स गिवन है उनके कोसाइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लीजिए। सो हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाते हैं उस लाइन के। सो हियर वी हैव अल्फा एज 90 डिग्री, बीटा एज 135 डिग्री एंड गामा एज 45 डिग्री। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर cos 90 degree, cos 135 degree and cos 45 degree. So you know cos 90 degree is 0 and cos 135 that is in second quadrant, and so we will write it as cos of 180 minus 45 degree and cos 45 you know 1 by root 2. So now cos 90 becomes 0 and cos of 180 minus 45 become minus of cos 45, you know in the second quadrant cos is negative, and 1 by root 2. So now 0 and cos minus cos 45 become minus of 1 by root 2 and 1 by root 2. So 0 minus 1 by root 2 and 1 by root 2 are the direction cosines of given line with the direction positive direction of x-axis, y-axis and z-axis. So this is all about question number 1. So now some important result, that is L square plus m square plus n square equals to 1, means sum of square of direction cosines along x-axis, y-axis and z-axis is always 1, or we can say as we know that L equals to क्या होता है cos alpha, m equals to cos beta and n equals to cos gamma, so that L square will be cos square alpha, m square will be cos square beta and n square will be cos square gamma. So that हम राइट कर सकते हैं cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Similarly, sin square alpha cos square alpha can be written as 1 minus sin square alpha, cos square beta can be written as 1 minus sin square beta and cos square gamma can be written as 1 minus sin square gamma. So हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाता है, that is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equals to 2. Keep in mind these are the important results. So now proceed for question number 2. Find the direction cosine of line which makes equal angles with the coordinate axis. हमें उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं जो इक्वल एंगल्स बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ. सो लेट लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स अल्फा अल्फा एंड अल्फा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर cos alpha and cos alpha. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. सो नाउ देयरफॉर हम कह सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. बट यहाँ देखिए अल्फा बीटा और गामा सेम है, दैट इज अल्फा अल्फा एंड अल्फा. सो हम राइट करेंगे यहाँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, and cos square alpha will be 1 by 3, and this square will be transposed to the right hand side and become square root, so that cos alpha equals to plus minus 1 by and root 3. So thus from equation 1, that is this is equation number 1. So direction cosine of line r plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3 and plus minus 1 by root 3. So यही आपके डायरेक्शन कोसाइन है, plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3 and plus minus 1 by root 3. So now important remark है आपके लिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट आर 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3. अगर हम बात करें पॉजिटिव ऑक्टेंट की तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन है, अगर लाइन इक्वल एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो हमें मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन क्या, 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3. We will consider only positive value of direction cosines here. So now proceed for next question, that is question number 3. If a line has the direction ratio as minus 18, 12 and minus 4, then what are its direction cosine? So देखिए अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो में गिवन है minus 18, 12 and minus 4, then the direction cosines will be we are to find. So now we know that if A, B and C are the direction ratio of a line, then the direction cosines are. देखिए अगर हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है लाइन के, then डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि A अपॉन अंडर रूट
of a square plus b square plus c square. Similarly, b upon under root of a square plus b square plus c square and c upon under root of a square plus b square plus c square are the direction cosine of the given line. So here direction ratio of the line are minus 18, 12 and minus 4, that is a, b and c. So now therefore हम कह सकते हैं under root of a square plus b square plus c square हम find out कर लेते हैं first of all. So under root of minus 18 square plus 12 square minus 4 square. So 18 square become 324, 12 square become 144 and minus 4 square become 16. So इन सबको ऐड करने में मिल जाता है हमें 484. So now we have 22. देखिए 484 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिल जाता है 22. So the direction cosine of required line will be minus 18 by 22, 12 by 22 and minus 4 by 22. So simplify करने में मिल जाता है हमें minus 9 by 11, 6 by 11 and minus 2 by 11. These are the direction cosine of required line. So now question number 4. So that the points 2, 3, 4, minus 1, minus 2 and 1, 5, 8, 7 are collinear. हमें प्रूव करने हैं ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, मीन्स कोलिनियर है. सो गिवन पॉइंट्स A 2, 3, 4, B minus 1, minus 2 and 1 एंड C 5, 8, 7 आर, ये हमें गिवन वर्टिसेस हैं, गिवन पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है. सो नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग AB, हम AB का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं. और आप सभी जानते हैं हमने वेक्टर में पढ़ लिया है डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमें गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो. सो हम रेस्पेक्टिव x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट हम देखते हैं. सो जैसा कि हम देख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी विल बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ पॉइंट बी माइनस डायरेक्शन रेशियो ऑफ पॉइंट ए. सो -1 -2 करेंगे एंड -2 -3 करेंगे और 1 -4 करेंगे. सो दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी. सो मिल जाता है -3, -5 और -3. सो दैट इज a1, b1 एंड c1 हमें मिल जाता है. सो नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग bc. अब हम bc का डायरेक्शन रेशियो देखते हैं तो हमें मिल जाता है 5 minus -1, 8 minus -2 and 7 minus 1. सो मिल जाता है 5 plus 1, 8 plus 2 and 6, that is 6, 10 and 6, that is A2, B2 and C2. सो हमें मिल जाता है A2, B2 और C2. और A1, B1, C1 हमारे पास कितने थे, -3, -5 और -3 थे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल. डायरेक्शन रेशियो क्या प्रोपोर्शनल है, दैट इज A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2. दैट इज हम कह सकते हैं -3/6, -5/10 एंड -3/6 इक्वल्स टू -1/2. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें देखने पे नज़र आता है, देख सकते हैं आप A1 और A2 हमें देखिए कि A1 हमारे पास -3 है, ये +6 है, -5, 10 एंड -3 और 6. सो मिल जाएगा -1/2. मीन्स ये डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या प्रोपोर्शनल है. सो हैंस देयरफॉर वी कैन से AB इज पैरेलल टू BC. देखिए अब रेशियो हमारे पास ये प्रोपोर्शनल आ रहा है. सो हम कह सकते हैं AB इज पैरेलल टू BC, बट B इज़ द कॉमन पॉइंट. देखिए B उनके बीच में कॉमन पॉइंट है बोथ AB और BC के अंदर. सो हैंस वी कैन से पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर. ये क्या है, कोलिनियर हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. You can say whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2 and -5, -5 and -2. So now given vertices of triangle ABC are A 3, 5, -4, B -1, 1 and 2 and C -5, -5 and -2. So देखिए हमें ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके वर्टिसेस हमें गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हैं. सो हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, दैट इज क्या होता है x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम x2 - x1 करेंगे तो -1 -3 हो जाएगा, 1 -5 हो जाएगा और 2 -4 हो जाएगा. सो हमें मिलेगा -4 एंड 6. सो नाउ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज द मैग्नीट्यूड. सो हमें मिलेगा -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. सो सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 16 + 16 + 36, दैट इज रूट ऑफ 68. एंड यू नो रूट 68 का हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 2 × 2 × 17. सो हमें मिल जाएगा 2 × रूट 17. सो 2 × रूट 17 हमें मिल जाता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू. सो अब डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे. सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AB आर -4 अपॉन 2 रूट 17. देखिए इस a को डिवाइड कर दीजिए रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से. सो मिल जाएगा -4 अपॉन 2 रूट 17, -4 अपॉन 2 रूट 17 एंड 6 अपॉन 2 रूट 17. सिंप्लीफाई करने में मिल जाएगा हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AB, दैट इज -2 बाई रूट 17
minus 2 by root 17 and 3 by root 17. So now the direction ratio of line BC are minus 5 minus of minus 1, minus 5 minus 1 and minus 2 minus 2. So मिल जाता है हमें minus 4, minus 6 and minus 4. These are the direction ratio of line BC. So now dividing each term by under root of a square plus b square plus c square. सो हमें मिल जाता है डायरेक्शन कोसाइन, बट उससे पहले आप फाइंड आउट कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो दैट मिलेगा अंडर रूट ऑफ माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर. सो मिलेगा रूट ऑफ 16 प्लस 36 प्लस 16 एंड दैट इज रूट ऑफ 68. सो मिल जाता है 2 रूट 17. सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी आर माइनस 4 अपॉन 2 रूट 17, माइनस 6 अपॉन 2 रूट 17 एंड माइनस 4 अपॉन 2 रूट 17. सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है हमें माइनस 2 बाई रूट 17, माइनस 3 बाई रूट 17 एंड माइनस 2 बाई रूट 17. These are the direction cosines of line BC. So now the direction ratio of line CA are 3 minus minus 5, 5 minus of minus 5, minus 4 minus of minus 2. So simplify करने पे मिल जाता है 3 plus 5, 5 plus 5 and minus 4 plus 2. So that हमें direction ratio मिलेंगे 8, 10 and minus 2. So dividing each term by under root of 8 square plus 10 square plus minus 2 square. So that हमें मिलेगा root of 64 plus 100 plus 4, that is under root of 168. So इनको फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है 2 into 2 into 2 into 3 into 7. So देखिए यहाँ से पेयर बना के बाहर निकालेंगे हमें मिलेगा 2 root 42. So that direction cosine of line CA are 8 upon 2 root 42, 10 upon 2 root 42 and minus 2 upon 2 root 42. तो सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है हमें 4 upon root 42, 5 upon root 42 and 1 minus 1 upon root 42. So these are the direction cosine of line CA. So this is all about question number 5 and exercise 11.1. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.